সাদা রঙের ওই ব্ল্যাক বক্স, তার মধ্যে মিনিট টু মিনিট রেকর্ড হয় সমস্ত, অর্থাৎ এই যে বিমান দুর্ঘটনা ঘটলো তার সমস্ত রহস্যকেই ব্ল্যাক বক্সেই লুকিয়ে কিভাবে সেটা বের করার কাজ চলছে দেখুন আমাদের প্রতিনিধির প্রতিবেদন। एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स की बात करें तो उसकी पहचान पहले दिन कर ली गई थी, लेकिन उसके टेल में होने से जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था उस ब्लैक बॉक्स को बरामद नहीं किया गया था। कल ब्लैक बॉक्स को भी बरामद कर लिया गया है, जिसके दो प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जो ब्लैक बॉक्स है उसे रिकवर कर लिया गया है। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में DGCA की एक टीम गुजरात में है, अहमदाबाद में है और कल से ही उन्होंने अपनी जांच शुरू की थी। आज सुबह से ही घटना के तीसरे दिन से ही DGCA की टीम घटनास्थल पर अलग अलग टीमों के साथ पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। इस वक्त जो मेघाली नगर का इलाका है जहां पर BJ मेडिकल कॉलेज है, जहां एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, वहां पर NSG की टीम भी मौजूद है, साथ ही साथ DGCA की टीम भी मौजूद है। और DGCA अपने जो कार्य करने का तरीका है उसके अनुसार कार्य कर रही है, जबकि NSG अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। और दरअसल तमाम जो एजेंसियां हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही होगी। अब तक किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। क्या किसी प्रकार का फाउल पे था, कोई संदेह तो नहीं है या कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई थी, इस एंगल से भी जांच किया जा रहा है। इसीलिए जो तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी हैं, राज्य की जो स्टेट पुलिस है, ATS है, वो भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, अहमदाबाद। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো তারা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়, অর্থাৎ দুর্ঘটনাস্থলে তাদের আধিকারিকরা পৌঁছে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে কারণ কি তা জানার জন্য গতকাল থেকেই তদন্ত শুরু হয়েছে। গতকাল আমরা দেখেছিলাম DGCA আধিকারিকরা, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন এবং আজকে দেখা যাচ্ছে AAIB অর্থাৎ এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর যারা আধিকারিক তারা এসে পৌঁছালেন। তারাও জানালেন যে গতকাল থেকে কিন্তু তারা এই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। আজকে সেই তদন্তের দ্বিতীয় দিন এবং এটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন যে এয়ার ইন্ডিয়ার এই বিমানটি টেক অফ করার 27 সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে ভেঙে পড়ল। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এজেন্সিগুলো তদন্ত করছে, তার পাশাপাশি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সচিব পর্যায়ের যারা আধিকারিক তারা এই টিমে থাকবেন এবং তারাই এটা নিশ্চিত করবেন এই সমস্ত এজেন্সি অর্থাৎ এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো, DGCA, ফরেন্সিক, তাদের থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে তারাই এই মীমাংসায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন যে এই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ কি, আর তারপর ব্ল্যাক বক্স থেকে যে তথ্য আসবে তারপরে নিশ্চিত হওয়া যাবে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে ব্রতদীপ ভট্টাচার্য, ABP আনন্দ, আহমেদাবাদ। Investigation is in progress. We are going to the site. This is the second day. Please, whatever will be there, Ministry of Civil Aviation will update on your media update. Okay. অর্থাৎ কিভাবে ঘটলো এই ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা, তার পেছনে কারণ কি সেটারই তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে তিনটে এজেন্সি। তারা কিভাবে কাজ করছেন সেই তথ্যই তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় সিং। आज घटना का तीसरा दिन है और घटना के तीसरे दिन भी कई एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई है। एक तरफ जहां इस घटना के बाद DGCA ने, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, इसकी जांच की जा रही है, वहीं अलग अलग एजेंसियां भी इसमें जुटी हुई हैं और अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं इस मामले में कोई फाउल प्ले तो नहीं है। अगर हम एजेंसियों की बात करें तो NSG की टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। NSG की टीम कल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और स्थानीय गुजरात पुलिस के साथ वो पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रही थी, साथ ही साथ अपने साक्ष्य जुटा रही थी और जांच कर रही थी कि आखिरकार क्या कुछ घटना हुई है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे जो भी सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य है वो NSG की टीम कर रही थी। इसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक की टीम जो कि गांधीनगर से आई थी, एक 9 सदस्यों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी जो गुजरात ATS के साथ मिलकर काम कर रही थी और फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है, कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। जिस प्रकार से
फॉरेंसिक की टीम है वो अपनी जांच में रिपोर्ट देगी। इससे काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल होंगी। और कल फॉरेंसिक के अलावा गुजरात की एटीएस टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही थी और जांच में गुजरात एटीएस को इस इमारत में, जो बीजे मेडिकल कॉलेज का इमारत है, उसके सीसीटीवी का एक डीवीआर मिला है और इस डीवीआर से क्या तस्वीर मिल सकती है या कुछ जानकारी मिल सकती है, इसीलिए एटीएस ने उस डीवीआर को अपने कब्जे में लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, जब ये विमान हादसा हुआ तो उसके बाद एनआईए भी एक्शन में थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने भी मामले की जांच की और ये पता लगाना था कि कहीं ये कोई सबोटाज तो नहीं है या कोई आतंकी घटना तो नहीं है या किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं है। लेकिन एनआईए सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ऐसी कोई बात निकलकर